आपण 3 practical. Okay, so students, the recording is going to be done for this particular experiment. For experiment number 1, 2, and 3, the recordings are already shared. Then the write-ups, everything is there on Google Classroom. This is our experiment number 4, that is to verify Norton's theorem. Now, uh, the kit is just somewhat different. I think all of you can see this kit. Can you read the resistances which are written on this? Sahil, Sahil, I'll take your help because there are certain students offline who are present. A few people are connected online also. No, fine. So can you just come here to this kit? Okay. So, उभेच राहा. कारण मी उभा राहील आणि तुम्ही बसले चांगलं नाही. छोटंसं काम आहे. लॉग इन करत आहे. So, students, I think all of you can see this. Can anyone tell me the resistances which are written on the kit? Sahil? Yes, sir. R1, R2, R3, R6, R7, sir, इतने दिख रहे. Okay. And R4. Okay. So, और ऊपर लेता हूँ मैं तो. चला पिन कर. गौरव कर. हाँ, पिन कर. Okay. Can you see now? सर ब्लर दिख रहा है बहुत. बहुत ब्लर दिख रहा है. मुझे मोबाइल पे काफी अच्छा दिख रहा है ना. Keep your bags there. Now, please pin the second Gaurav Gadge. Kindly pin the second Gaurav Gadge because you'll see that Norton's kit. Okay, can you see this kit? See, online students are also present for the practical. I think now you can see this kit. Now is it properly visible? Sahil, is it properly visible? Someone has to comment, someone has to give me response so that I can understand. Because otherwise it will be difficult for me to adjust my camera. Because for offline students it is quite easy. Okay, so I'll start with the practical. See now, the kit for Norton's as well theorem is same.
circuit for Norton's and Thevenin's theorem is same. In case of Norton's, there is extra source required. So you can see two sources connected. Whereas in case of Thevenin's theorem, there is single source connected, that is on, say, left hand side. But in this particular case, there are two sources present. Now, the process of performing the experiment is also same. The only thing is, in this particular case, you have to deal in terms of current. आपको जो भी यहाँ पर प्रोसेस करनी है, उस प्रोसेस में आपको करंट मेजर करना है. अब जैसे अगर आपको याद होगा तो सभी वो पढ़ा लगे. सो यहाँ पर the load resistance is again R3. यहाँ पर फिर से आपका load resistance R3 रहेगा. Okay, then we will be using all the resistances which are present right now in the kit except R8 and R9, क्योंकि R8 and R9 can act as a load resistance again. So therefore all the resistances will be used here for the circuit conduction. So the resistances start from R1, R2, okay, then R3, then R4, then R5, R6 and R7. So we will be using all the resistances in the network. तो जितने भी किट में दिए हैं वो सारे रेजिस्टेंस हम लोग यूज करेंगे. हमें करना क्या है कि नॉर्टन्स को वेरीफाई करना है. तो वेरीफाई करते वक्त हमें दो चीजें मेजर करनी होंगी. पहली चीज, जैसे थेवेनिन्स में हमने थेवेनिन्स वोल्टेज मेजर किया था, यहाँ पर हम लोग नॉर्टन्स करंट मेजर करेंगे. ओके, थेवेनिन्स वोल्टेज मेजर करते वक्त आप लोगों ने एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट बी, ऐसा वोल्टमीटर आपने इसके अक्रॉस कनेक्ट किया था. हम लोगों को यहाँ पर करंट मीटर, यानी यहाँ पर जो मिली एमीटर दिया हुआ है, ये मिली एमीटर कनेक्ट करना है. तो ये मिली एमीटर कनेक्ट करने के लिए ये एमीटर आपका इस रेजिस्टेंस R3 को हटा के सीरीज में कनेक्ट करना है. यानी आपको इन शॉर्ट ए और बी टर्मिनल के बीच में ही एमीटर कनेक्ट करना है, जहां पर आपने वोल्टमीटर कनेक्ट किया. तो ए और बी के बीच में वोल्टमीटर की जगह यहां पर अभी आप एमीटर कनेक्ट करोगे, ताकि ये मिली एमीटर कैन डू द मेजरमेंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए बी टर्मिनल. ओके, अब जब आप ए बी को कनेक्ट करोगे, इसका मतलब यू आर शॉर्ट सर्किटिंग रेजिस्टेंस R3. So when you short circuiting resistance R3, the current which passes through AB terminal, that is nothing but the Norton's current or short circuit current. Okay, after measurement of that Norton's current or short circuit current, then you have to connect same milliammeter before R3, that is in between this yellow and red terminal. You have to connect that milliammeter so that that milliammeter can do the measurement of current passing through R3. And for us, R3 is nothing but the load resistance. For us, R3 is load resistance. So when we connect milliammeter before load resistance, it means we are doing the measurement of current, that is called as load current. Okay, so first connect milliammeter between AB terminal like voltmeter. Okay, so in Thevenin's theorem, you get Thevenin's voltage. In Norton's theorem, you get Norton's current, that is short circuit current. After getting that, connect same milliammeter before R3, so that that can do the measurement of current passing through R3. Passing through R3. Current, short circuit current. In first step, you get the short circuit current, and in second step, you get the current through R3. Is it clear with this point? So those currents are called as the practical values of currents. Practical values of currents. Okay. So now you have to, for that purpose, you have to apply the voltage. अब आप voltage अब apply करोगे, voltage यहाँ पर apply करते वक्त दो यहाँ पर adjustment दिए हैं. It means there are two sources given, source E1 and source E2. Okay, so this E1 का voltage is adjusted with this knob, E2 का voltage is adjusted with this knob. Okay, then
कनेक्ट ऑल द ब्लैंक स्पेसेस, यहाँ पे जितने भी आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहे हैं ना, वो सारे ब्लैंक स्पेस आप कनेक्ट करें। ओके, उसके बाद वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इस R3 को आप रिमूव करें। R3 जैसे रिमूव हो जाता है, डू द मेजरमेंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू AB, तो वो करंट होगा आपका शॉर्ट सर्किट माने नॉर्टन्स करंट। फिर से एक बार बताता हूं। सो जस्ट डू द कनेक्शंस ऑफ ऑल द ब्लैंक स्पेसेस। यहाँ पे जैसे ब्लैंक स्पेस है C और R1 के बीच में, यहाँ पे है R1 और A के बीच में, तो ये सारे ब्लैंक स्पेसेस आप कनेक्ट करें। कनेक्ट करने के बाद R3 भी आपका कनेक्ट होगा। ये होने के बाद एडजस्ट द वोल्टेज ऑफ E1 एंड E2 ऑफ 5 वोल्ट्स। ये वोल्टेज आपके 5 वोल्ट एडजस्ट होने के बाद आपको ये R3 रिमूव करना है। जैसे आप R3 रिमूव करते हो, यहां पर A और B टर्मिनल के बीच में आपको मिली एमीटर कनेक्ट करना है, तो वो मेजर करेगा शॉर्ट सर्किट करंट माने नॉर्टन्स करंट। वो होने के बाद आपको क्या करना है, आपको वही मिली एमीटर इन दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करना है, और जैसे आप ये दो टर्मिनल के बीच में कनेक्ट करते हो, वो आपको दे देगा लोड करंट। ओके, तो यहां पर आपका परफॉर्मेंस वाला पार्ट खत्म हो जाता है। हियर यू कैन कंप्लीट द परफॉर्मेंस पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थियरम, बट आपका वेरिफिकेशन है, आपको वेरीफाई करना है, और वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना होगा, द मेजर्ड वैल्यूज ऑफ दीज टू करंट्स, measured values of these two current must be equal to calculation of currents. Is it clear with this point? Okay, so I'll just brief you how to I think all of you know how to do the connections. ठीक आहे, याच्या हातात घेऊन द्या तुम्ही. हा बरं चालेल, सॉरी संजीव. Okay, so now students are doing the connections. Yes, yes, yes. हाँ, आपको सिर्फ एक ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान में रखे जितने भी ब्लैंक स्पेसेस है उनको आपको कनेक्ट करना है, बराबर है? नाही काय गरज नाही त्याची. हाँ करा, शुरू करना. ब्लैंक स्पेस आपको कनेक्ट करना है. अब यहाँ पर आपको ब्लैंक स्पेस कहाँ दिख रहा है? यस, देखो सप्लाई ऑफ है तो डरने वाली कोई बात नहीं है, शॉक नहीं लगेगा, ये सोर्स है, ठीक है. वेरी गुड, व्हेरी गुड. कनेक्ट झाला की ते बरोबर. अगं आपण आरती नाही करत आहे की बा मी आरती ओवाळली, आता दुसरी आरती ओवाळते, आता तिसरी आरती ओवाळते, कोणी एक जण करा, ठीक आहे. नाही एक एक परफॉर्म नाही करायचं रे. अच्छा, हे याला संजो, याला करू दे. नाही अरे असं काही नाही आहे की आजकाल असं काही. हाँ, सिर्फ आपके ब्लैंक स्पेस कनेक्ट होने चाहिए, नहीं. आणि वायरच कनेक्ट करायचं आहे, त्यामुळे R3 वी हॅव टू कनेक्ट. जेवण करून आली आहे ना? ये R8 और R9 हम लोग यूज नहीं करते. हाँ, इनफैक्ट हम लोग उसको यूज करके भी एक और एक्सपेरिमेंट सेटअप बना सकते. एक पूरा सेटअप, एक स्टुडंट कमी आहे का? नाही, माझ्यासाठी 6 मुली झाल्या, 3 स्टुडंट्स कमी आहे. हाँ, अभी इतने हो गए. अभी आप R3 कनेक्ट करो. अब जब आप R3 कनेक्ट कर रहे हो, आई थिंक ऑल ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो आर लिसनिंग. So students, when you connect R3, it indicates that you are connecting load resistance. Okay, ते राहू दे. घाबरतो कशाला? हात कर. नाही त्याला हे समोरून दिसतंय ना. नाही असं
नहीं नहीं, एक्चुअली इसमें मिरर इमेज दिख रहा है अगर आप ध्यान से देखो तो। हाँ, अब यहाँ पर देखिए क्यों, यहाँ पर ज्यादा रॉड प्लास्टिक है, नॉन वर्बल। So students, we have done these connections. Okay. Now what you have to do? Current आपण एकदम आता मेजर नहीं करो, सगळ्यात पहिले voltage apply करो. Okay. Now you have to apply the voltage on both the sides. तो इसको सेट करो और ऑन करो. वोल्टेज जो है आपको डीसी वोल्टेज, आप ये डीसी 20 वोल्ट हाँ 20 वोल्ट क्यों दिया, क्योंकि हमें 5 वोल्ट दोनों साइड में अप्लाई. बैटरी कहाँ पर है? वोल्टेज यहाँ से यहाँ पर आपको वोल्टेज, आपको बैटरी यानी ये इवन हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दो टर्मिनल्स आपको दिख गया इसके अक्रॉस वोल्टेज के साथ. ओके, अब उसके बाद आप T2 के अक्रॉस में करें. कितना वोल्टेज दिखा रहा है, सॉरी वोल्टेज कितना दिखा रहा है? हाँ, माने इसको आपको 5 वोल्ट अंदाजन करना होगा. दिख रहा है सब लोगों को जी? And in fact, the recording of this practical session is going on. So whatever you are discussing, that is also going to be recorded. Guys, here that multimeter is connected. So that multimeter shows. एक माइक ऑन है ना, इसका माइक ऑन है. हाँ, तो इट्स 3.4 हळू करे. Fine. Okay. So now this is C. All of you can see. Anurag, Sankalp, Sahil. All of you can see this 5.5 volt. That is 5.05 rather. 5.05 volt is applied on primary side. On left hand side. Now. Now on the other side voltage we have to note it, we have to set to 5 volts. Okay, so now it is again multimeter is connected across. सब मल्टीमीटर अब आपका E2 मेजर कर रहा है, ठीक है? No, this is voltage. E1 equal to 5 volt, E2 equal to 4.98. 4.99, it means you can note it down as 5 volt. Okay, now what you have to do? Just remove multimeter, because whatever the settings which we wanted to do, that is done. Now, as I said, you have to measure the current. That is short circuit current or Norton's current. So for that purpose, just connect. Please check very carefully. यहाँ से मैंने R3 हटा दिया. So remove load resistance and connect milliammeter. एक यहाँ पर माइनस संजू बाबू कुछ नहीं करना. Okay. Okay. So now students, this milliammeter is connected across R3. जैसे आपने voltmeter across लगाया था, वैसे ही यहाँ पर अभी आपका milliammeter across R3 connect होगा. Okay. So the voltage, can anyone read that voltage? 27.7 milliampere.
I think online students can easily read that value because offline are finding difficulty to read. So it is 27.8 milliampere. All of you please write down somewhere. कोई एक boys एक girls में से लिखता है. So now this is your Norton's current equal to short circuit current. ये शॉर्ट सर्किट या नॉर्टन्स करंट क्यों कह रहा है? क्योंकि R3 को आपने रिमूव किया, यू हैव रिमूव दैट रेजिस्टेंस R3, लोड रेजिस्टेंस R3, ठीक है, एंड उसके अक्रॉस आपने मिलियमीटर कनेक्ट किया हुआ, यू कैन सी दीज टू ब्लैक वायर्स व्हिच आर कनेक्टेड अक्रॉस. ओके, सो देयरफॉर दिस वैल्यू इज से 27.9. ओके, यू कैन मेक इट 28 मिलियम्पियर डायरेक्ट. Make it 28 milliamp. Fine. Okay. Now this is done with Norton's current, short circuit current. अब आप क्या करोगे? You have to measure the current passing through R3. Current passing through R3. Okay. For that purpose, can you tell me a single wire which we can move so that we can do the measurement of current? I have to do the measurement of current through R3. तो मुझे आप सिंगल मूव बताइए, कौन सा ऐसा वायर का टर्मिनल मैं मूव करूं सो दैट आई कैन गेट द करंट थ्रू R3. हाँ, एकच फक्त. हाँ, yes, just see, online students please see this. ये वायर मैंने यहाँ पर जो मिलियमीटर में कनेक्टेड था, ये मैंने हटा दिया एंड नाउ कनेक्टिंग बिफोर R3 के पहले मैंने उसको कनेक्ट कर. अब उससे क्या हुआ कि वॉट एवर द करंट दिस पर्टिकुलर ब्रांच कंटेन्स, इट इज पासिंग थ्रू दिस मिलियमीटर एंड देन R3. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट करंट? 20.2 मिलियमीटर. 20.2 या 20.1 मिलियमीटर. 20.1 milliamp. Okay, so that's all with this reading. यानी यहाँ पर आपका रीडिंग कंप्लीट हो गया. अब आपको ये वेरीफाई करना है. हाँ, सो वेरिफिकेशन के लिए मैं अभी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक्सपेरिमेंट हो गया. वी हैव डन विद द एक्सपेरिमेंट. क्लियर हुआ? यस सर. नहीं समझ? सीरियस? चलो एक्सप्लेन कर दीजिए क्या किया मैंने. मला कशाला दाखवता हे दाखव यांना दाखव. हाँ ठीक है, चलो कौन एक्सप्लेन करेगा अच्छे से? हिंदी, मराठी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज. प्रत्येक इसको नहीं वो हल रहा है. कनेक्शंस में क्या किया है बताइए? सारे गैप्स को फिल किया. चलो गैप्स याद रह गए हैं, इतना भी सफिशिएंट. आप लोगों ने जहां जहां पर स्पेसेस थे, जो ओपन टर्मिनल्स थे, टेक्निकल वर्ड्स में देखा जाए तो ओपन टर्मिनल्स जो थे वो सारे ओपन टर्मिनल्स आपने कनेक्ट. ये पूरे सर्किट में कितने लूप्स यहाँ पर बन रहे हैं? 2 लूप्स बन रहे हैं. ठीक है, कितने रेजिस्टेंस एलिमेंट्स यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं? और मोर देन दैट 7. R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. ओके, इसमें कौन सा रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस करके एक्ट हो रहा है? R3. पॉइंट क्लियर? ओके, R3 अगर लोड रेजिस्टेंस एक्ट हो रहा है तो कौन सा रेजिस्टेंस हम लोग नॉर्टन्स परफॉर्म करते वक्त रिमूव कर रहे हैं? R3. We are removing R3 resistance because R3 is acting as a load resistance. Okay. Now, how many sources are present in the network? 2. How many knobs are there? 2. What is the purpose of knob? To set the voltage. What is the purpose of connecting multimeter? To check the voltage. What is the purpose of milliammeter? To measure the current. Very good. So multimeter measuring voltage and milliammeter measuring current. Okay. Then knobs are given to set the voltage. Okay. Now, after making all the connections, all the resistances are get connected in the network. What you do?
what is your next step? Measure voltage. To measure voltage, but for that purpose you have to set the voltage. So knobs sets the voltage. How much value of voltage you have set? 5 volt on both the Yes. T1 equal to T2 equal to 5 volt. Okay. Then what you did? Then we measure from the measured. Huh? Then we measure. Yes, but to measure the current passing through that R3, आपको सबसे पहले R3 रिमूव करना है. So जो पाथ आपको मिलेगा, यानी आपको लोड रेजिस्टेंस वहां से रिमूव करना है. तो लोड रेजिस्टेंस रिमूव करने के बाद जो पाथ मिलेगा, उसके बीच में आप एमीटर लगा. तो जब आप एमीटर उसमें कनेक्ट करते हो तो वो पाथ को शॉर्ट कर देते. ये ध्यान में आ गया? तो वो पाथ आपका शॉर्ट हो गया. तो पाथ शॉर्ट होने की वजह से जो करंट यहाँ पर मेजर होगा वो करंट रहेगा शॉर्ट सर्किट करंट और नॉर्टन्स करंट. पॉइंट क्लियर? ओके. अब जैसे आपने करंट उस R3 के अक्रॉस आपने मिली एमीटर कनेक्ट करके नॉर्टन्स करंट मेजर किया, उसके बाद आपने क्या करंट थ्रू R3. तो लास्ट स्टेप इज टू मेजर द करंट थ्रू R3. यानी थ्रू माने करंट से जाने R3 से जाने वाला करंट. और उसके लिए आपने कौन सा एक टर्मिनल निकाला? यहाँ से एक मैंने टर्मिनल निकाला और R3 के पहले. यानी अभी आपका जो आने वाला करंट है एक टर्मिनल से, वो करंट इस वायर से होते हुए कहां पर जा रहा है? मिली एमीटर. मिली एमीटर से करंट पास होते हुए वो दूसरे वायर से कहां पर आ रहा है? इस R3 के पहले, और फिर वो R3 से पास. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दैट करंट? लोड करंट. तो पहला जो करंट था वो कौन था? शॉर्ट सर्किट करंट और नॉर्टन्स करंट. और दूसरा करंट कौन सा हुआ? लोड करंट. तो आपके ये मेजरमेंट हो गए. अब आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है. और वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? कैलकुलेट. सो यू हैव टू कैलकुलेट बोथ द करंट्स विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला. ओके, सो दैट द वेरिफिकेशन कैन बी डन. दैट्स ऑल. दिस इज व्हाट द इंस्ट्रूमेंट इज. चलो आप लोग स्टूल ले लीजिए, मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ. सिर्फ एक कोई अभी ये जो कैमरा है उस एक्सप्लेनेशन के पेज के ऊपर. अच्छा संजू तुम्ही पकडून बसा. एक्सप्लेनेशन पेज आता आपण हे बंद करू शकतो किंवा राहू देऊ शकतो. आता मुलांना हे नाही दाखवायचं. मुलांना फक्त मी जे एक्सप्लेन करतो. हाँ, जैसा अपन आता R3 हम लोगों ने जैसे लिया था ना, उसी तरीके से आप R8 R9 भी ले सकते हैं. मग तो लोड रेजिस्टेंस होंगे. हाँ, आप हम लोगों ने सिर्फ R3 लिया. एक मुझे कॉपी लगेगा आपकी तरफ से या फिर okay. So students, first we have measured the value of Norton's current. What is that value? Which is also called as short circuit current. 28 point. Okay, 28 milliampere. उससे में क्यों आ रहे हो? उसके बाद लोड करंट 20.2 मिलीएम्पियर. तो ठीक है, आपने 19 भी लिखा होता तो चलता था, क्योंकि उसके बाद वो करंट थोड़ा रेंज बढ़ता है. फाइन, नो इशू. Okay, so these are the values called calculated values. So in first step, or rather in the performance steps, we have measured value. We have performed the experiment and we found the measurement of following parameters. Okay, so these are the measuring values. Now in next step you have to do the calculation of that Norton's current. अब Norton's current के लिए आपके पास सर्किट कैसे बन रहा है वो देखते हैं. आपने रेजिस्टेंस R4 सर्किट में कनेक्ट किया हुआ है. यहाँ पर एक आपका वोल्टेज सोर्स है E1, बराबर. उसके बाद आपने रेजिस्टेंस R1 कनेक्ट किया. ओके, उसके बाद आपने रेजिस्टेंस R2 कनेक्ट किया. देन यू हैव कनेक्टेड रेजिस्टेंस R5 इन द नेटवर्क, देन अ वोल्टेज सोर्स. नाउ
first voltage source is E1, another voltage source is E2. Okay. Then you have connected resistance R3 in the network. That resistance R3 is also referred as load resistance. Then you have connected resistance R6 and here R7. ये तुम्ही लोग जवळ येऊन घ्या ना आप लोग वॉइस, क्योंकि दिखेगा नहीं आपको. अच्छा आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, वोल्टा दिख रहा होगा. Fine. So these are the values of resistances. Now the values of resistances are like R1 is 100 ohms, R2 is 100 ohms, then R6 is 220 ohms, R7 is 220 ohms, R3 is 82 ohms. Okay, R3 is 82 ohms, R4 and R5 are 47 ohms. R4 and R5 are 47 ohms. Okay, so now with the help of these values you have to do the calculations. So this is your given circuit. अब इस सर्किट को आपने मॉडिफाई किया. मॉडिफाई करते वक्त आपने क्या किया कि इमीडिएटली इस रेजिस्टेंस R3 को आपने हटा दिया. So now what I'll do, I'll just remove that R3 and connect one ammeter here. अब एमीटर कनेक्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, यू आर डायरेक्टली पुटिंग अ शॉर्ट सर्किट देयर. आप वहां पर डायरेक्ट एक शॉर्ट सर्किट दे रहे हो, और शॉर्ट सर्किट देते वक्त यहाँ पर बाकी कनेक्शंस आपके एज इट इज रहेंगे. सो ये हो गया आपका रिमेनिंग सर्किट आफ्टर शॉर्ट सर्किटिंग द टर्मिनल्स. So this is your R5, this is E2. Okay, so now this particular current is referred as what? Norton's current. तो ये जैसे आपने यहाँ पर मेजरमेंट किया नॉर्टन्स करंट का, सेम वे वी हैव टू डू द कैलकुलेशन ऑफ दिस नॉर्टन्स. अब ये नॉर्टन्स करंट फाइंड करने के लिए देयर आर डिफरेंट वेज. लाइक पहला प्रोसेस आप यूज कर सकते हो कि हम लोग यहाँ पर सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करें, जो आपको जर्नल में दिया हुआ है. ओके, सुपरपोजिशन थ्योरम में आपको क्या करना होगा कि एक सोर्स एट ए टाइम यूज करना है एंड यू हैव टू पुट अ शॉर्ट सर्किट फॉर सेकंड सोर्स. अब जैसे सपोज मैंने एक सोर्स E1 इस सर्किट में यूज किया, तो E1 के लिए मुझे सर्किट मिलेगा कुछ इस तरीके से, सो दैट आई कैन हैव द मेजरमेंट ऑफ करंट एज से IN1 एंड पुट अ शॉर्ट सर्किट फॉर E2, यानी E2 को आप शॉर्ट कर दो. अब E2 को जैसे आप शॉर्ट करते हो तो E2 का वोल्टेज कितना बन जाएगा? 0. ओके, एंड द अदर एलिमेंट्स आर एज इट इज प्रेजेंट इन द नेट. ओके, तो ये हो गया आपका एक सर्किट. दिस इज योर से स्टेप 1 विथ रिस्पेक्ट टू सुपरपोजिशन थ्योरम. अब स्टेप 2 में आप क्या करोगे कि नाउ कंसीडर सेकंड सोर्स इन द नेटवर्क. Consider second source in the network and put a short circuit here. Keep that short circuit again. So that gives you value of IN2. So this is resistance R1, R4, R6. Okay. अब इसमें आपने E1 को शॉर्ट कर दिया so that the E1 becomes equal to 0 volt. Here E2 becomes equal to 0 volt. So this is your step number 2. So this is now a new circuit where you are applying E2 voltage source and the value of that resistance is say R6. Okay, तो इसका मतलब आप IN1 और यहाँ पर आप IN2 मेजर करोगे, बराबर. अब ये IN1 जब आप मेजर करोगे तो आपका यहाँ पर सर्किट सिंपल बन रहा है. क्यों? क्योंकि जब आप IN1 मेजर कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक शॉर्ट सर्किट है. जैसे यहाँ पर शॉर्ट सर्किट है तो ये शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या हो रहा है ना कि R2, R5 और R7 ये सारे शॉर्ट हो रहा है. बात समझ में आ रही? जैसे सपोज आप छत्रपति स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर खड़े हो और आपको इस गजानन नगर स्क्वायर वाला या अंडर ब्रिज नरेंद्र नगर वाला जो पॉइंट है वहां पर आपको पहुंचना है. तो आप क्या करते हो, आप छत्रपति स्क्वायर से साई मंदिर स्क्वायर से आप राइट लेते हो, वहां से आप सीधा चलते आते हो, फिर गजानन नगर वाला रोड लेते हो और यहाँ पर आप पहुंचते. लेकिन अगर गलती से ये आपका पूरा बंद है
तो आपको पाथ कौन सा मिल जाता है, यहाँ छत्रपति स्क्वायर से आप सीधा निकले और ये नरेंद्र नगर वाला अंडर ब्रिज जो है वहां पर आप पहुंचे। अब ये पाथ अगर आपके लिए ओपन कर दिया, ये पाथ अगर आपके लिए ओपन कर दिया, तो क्या आप लोग यहां से घूम के जाओगे क्या? नहीं, आपके लिए कौन सा सिंपल पाथ रहेगा, ये बराबर। अभी इवन आप लोग कॉलेज जब चढ़ते हो तो आप नीचे उतरते हो, उसके बाद सीधा जो एक स्ट्रेट रोड है वो फॉलो करते हो, बराबर। आप लोग पहुंचते हो जो बाजू वाला आनंद वन है वहां पर, आनंद वन से आप राइट लेते हो, राइट लेने के बाद आप मॉन्फोर्ट स्कूल के सामने पहुंचते हो, मॉन्फोर्ट स्कूल से आप लोग पहुंचते हो कॉलेज में। अब वो रोड की जगह अगर आपको शॉर्टकट वो जंगल वाला रोड अच्छा बना के दे दे, तो आप कौन सा रोड फॉलो करोगे, ये शॉर्टकट। उस केस में ये जो रोड ऑप्शन था क्या वो आप फॉलो करोगे, नहीं। उसी तरीके से जब आप यहाँ से सप्लाई की वजह से जो करंट पास होता है, ये करंट आपका पूरा सिर्फ और सिर्फ इस शॉर्ट सर्किट पाथ को फॉलो करता है। क्यों? बिकॉज करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। Current is inversely proportional to the resistance. Smaller the value of resistance, greater the value of current. अब यहां पर रेजिस्टेंस कौन कौन से आ रहे हैं, R2, R5, R7, और यहां पर रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, निग्लिजिबल, क्योंकि आपने उसको शॉर्ट कर दिया। सो दैट निग्लिजिबल रेजिस्टेंस मींस हायर द वैल्यू ऑफ करंट, यानी करंट आपको कौन से पाथ को फॉलो करेगा, डाइवर्ट होगा इस पाथ के तरफ। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ओके, इसका मतलब ये जो पूरा पाथ है, ये पाथ आपका डमी बन गया। यूनिट नंबर 1 मेश एनालिसिस के पहले डमी पाथ, डमी एलिमेंट्स, यानी ये जो R2, R5, R7 है, ये सारे एलिमेंट्स आपके कैसे बन गए, R2, R5, R7 बिकम्स डमी एलिमेंट्स। क्या उसी तरीके के डमी एलिमेंट्स आपके इस सर्किट नंबर 2 में प्रेजेंट है? हाँ, कैसे? क्योंकि सोर्स आपने यहां पर दिया। अब सोर्स यहां पर अगर आपने देके रखा है तो ये करंट R5 R2 से पास होगा, लेकिन उसको लगेगा कि भैया ये तो मेरा शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस है या मिनिमम रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, तो मैं R1, R4, R6 को क्यों फॉलो करूं, आई विल फॉलो दिस पर्टिकुलर पाथ। यानी यहाँ पर आपके डमी एलिमेंट्स कौन से बन जाएंगे, R1, R4, R6 बिकम्स डमी एलिमेंट्स, these becomes dummy elements। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? अब आप कहोगे कि सर यहाँ पर ये डमी एलिमेंट्स बन गए, तो मेरे लिए तो यहाँ पर ओम्स लॉ मैं अप्लाई कर सकता हूँ। यस, यू कैन अप्लाई ओम्स लॉ। और ओम्स लॉ क्या कहता है, करंट इज इक्वल टू V बाय R। अब V यहाँ पर कौन सा रहेगा, वोल्टेज कौन सा रहेगा, E1, और रेजिस्टेंस कौन कौन से रहेंगे, यहाँ पर रखो ना, यहाँ पर हाथ रख दिया मैंने। अब रेजिस्टेंसेस है यहाँ पर कौन कौन से है, R1, R4, R6, so therefore I'll get R1 plus R4 plus R6। ये मेरा कौन सा करंट रहेगा, IN1। ठीक है, उसी तरीके से दूसरे साइड में देखते हैं। अब ये पाथ आपका पूरा शॉर्ट हो गया। अब अगर ये पाथ आपका शॉर्ट हो गया तो ये जो करंट है IN2, ये IN2 मैं फिर से ओम्स लॉ से फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, सो IN2 इज इक्वल टू, मैं पीछे मेरे जो बैठे हैं एग्जैक्ट उनके एक्सप्रेशन देख नहीं पा रहा हूँ, बट स्टिल ओके। सो IN2 इज इक्वल टू, अब फॉर्मूला क्या होगा, वेरी गुड, P2 अपॉन R2 प्लस R5 प्लस R7, यानी जो रेजिस्टेंस उस पर्टिकुलर पाथ में आ रहे हैं। यहां तक समझा? ओके, कौन सा लॉ हमने यहाँ पर लगाया, पूरे दोनों सर्किट में, सर्किट को डेवलप करने के लिए कौन सा थ्योरम यूज किया, सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। और सुपरपोजिशन थ्योरम के पहले कौन सा सर्किट के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, कौन से थ्योरम के ऊपर हम लोग वेरिफिकेशन, यहाँ तक क्लियर है? तो नॉर्टन्स भी हो गया, सुपरपोजिशन भी हो गया, ठीक है, नॉर्टन्स भी हो गया, सुपरपोजिशन भी हो गया, और ओम्स लॉ भी। क्या लगता है कि अगर मैं सिर्फ ओम्स लॉ पढ़ लूं तो मेरा नेटवर्क निकल जाएगा? नहीं। क्या सिर्फ मैं ओम्स के साथ साथ सुपरपोजिशन पढ़ूं तो नेटवर्क निकल जाएगा? नहीं। मैं नॉर्टन्स पढ़ूं, सुपरपोजिशन पढ़ूं और ओम्स लॉ, कोई दिक्कत है? पक्का पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, सो अब आपके पास IN1 आ गया, IN2 आ गया। सुपरपोजिशन क्या कहता है, you can find this ion and that ion is equal to IN1 plus IN2। अब यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट अप करें, सो E1 अपॉन R1 प्लस R4 प्लस R6 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस R5 प्लस
R7। अब आप पूछोगे सर ये फॉर्मूला डेवलप हो गया हमारा सुपरपोजिशन के हिसाब से और यहाँ पर मुझे नॉर्टन्स करंट का वैल्यू मिल इक्वल टू दिस Sir, you are not audible. हाँ नॉर्टन्स करंट हाँ अभी ठीक है बेटा Yes, sir. ओके नॉर्टन्स करंट तक कैलकुलेशन आपको या सुने आ गया था ना ओके सो नाउ put this develop this circuit this particular circuit is referred as Norton's network ठीक है तो ये हो गया आपका नॉर्टन्स नेटवर्क और जो आप लोगों ने रेजिस्टेंस रिमूव किया था जिसको हम कह रहे थे R3 दैट इज लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट दैट लोड रेजिस्टेंस हियर अब आपको यहां से जाना करना है नॉर्टन्स करंट हाँ तो ये एक ध्यान में रखिए कि मैंने फर्स्ट स्टेप में यहां पर क्या डेवलप किया क्या फाइंड किया फर्स्ट स्टेप में मैंने फाइंड किया नॉर्टन्स करंट सेकेंड स्टेप में मुझे फाइंड करना है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस और नॉर्टन्स रेजिस्टेंस के लिए आपको क्या करना होगा कि जितने भी सर्किट में आपने रेजिस्टेंस यूज किए हुए हैं उन सारे रेजिस्टेंसेस का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रहेगा उसको कहा जाता है नॉर्टन्स रेजिस्टेंस and to find that Norton's resistance you have to put a short circuit for voltage source and open circuit for current source तो वोल्टेज सोर्स यहां पर जो दो थे यानी E1
इसको मैंने शॉर्ट कर दिया E2, ये मैंने शॉर्ट कर दिया। अब रेजिस्टेंसेस जो थे वो है R1, R2, R3 तो मैंने ऑलरेडी रिमूव किया हुआ है क्योंकि दैट इज एक्टिंग एज अ लोड रेजिस्टर। तो R1, R2, देन R4, R5, देन R6, R7। सो यहां से आपको वो रेजिस्टेंस मेजर करना है जिसको हम कहते हैं नॉर्टन्स रेजिस्टेंस RN। ओके, तो नॉर्टन्स थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम का जो स्टेप है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने का, ये सेम। ये सबसे पहले सोर्सेस को आप हटा दीजिए, नॉट एग्जैक्टली हटा दीजिए, जस्ट मेक इट जीरो। And to make that as zero, you have to put a voltage source short circuited and current source to be open. अब जैसे वोल्टेज सोर्स को आपने शॉर्ट कर दिया, अब आपके पास बचा क्या है? सिर्फ रेजिस्टेंस। इसका मतलब आप कौन से रेजिस्टेंस, जितने भी रेजिस्टेंस उस सर्किट में बचे हुए उन रेजिस्टेंसेस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे। So what is Norton's resistance? Norton's resistance is nothing but the equivalent resistance. Equivalent resistance. अब ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दो टर्मिनल के बीच का आपको फाइंड करना है। इसका मतलब सपोज वो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि ये तीन रेजिस्टेंस और ये तीन रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड है, उसके बाद ये तीनों इन तीनों के साथ कैसे कनेक्टेड है, वो मुझे सी आई हैव टू सी द कनेक्शन, मुझे उनके बीच का रिलेशनशिप देखना होगा। और रिलेशनशिप देखने के लिए बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे कि आपका करंट पाथ कैसा, बराबर। सीरीज पैरेलल में हम लोगों ने करंट के ऊपर से ही कनेक्शन कहे थे कि भैया वो सीरीज में है या पैरेलल में है। अगर सीरीज में है तो करंट कैसे रहता है? अगर सर्किट आपका सीरीज में है, हमको कहते हैं ना भैया दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो करंट कैसे रहेगा दोनों में से जाने वाला? सेम। both the resistances will have a same current effect. ओके, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, इसका मतलब करंट कैसे हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। क्या यहां पर R1, R4, R6 वाला करंट आपका सेम है क्या? देखो ना, पाथ देखो, R1 से मैं निकला, मेरा पिन जा रहा है R1 से, क्या वो R4 की तरफ बढ़ गया? कहीं और बढ़ा क्या इधर? नहीं, R4 की तरफ डाइवर्ट हो गया। इसका मतलब R1 और R4 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। R4 को मैं फॉलो करते हुए, ये E1 तो मेरा 0 वोल्ट है, बराबर। सो E1 से पास होते हुए ये करंट मेरा R6 से पास हो रहा है। अब अगर R6 से पास हो रहा है तो इसका मतलब R1, R4, R6 कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। उसके बाद ये दूसरा पाथ देखते हैं। सपोज मेरा एक करंट R2 की तरफ से आ रहा है। अब R2 से जब वो करंट आएगा तो R2, R5 और R7 ये तीनों कैसे कनेक्ट हो रहे हैं? सीरीज में। सो आई डू हैव टू सीरीज कनेक्शन। यहाँ पर मेरे पास दो सीरीज कनेक्शन है। लेकिन जब यहां से आप आगे बढ़ रहे हो, यानी यहां से आप आगे बढ़ोगे क्योंकि Rn आपका यहाँ पर है, तो जब आप यहां से आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर कितने पाथ है? यहां से आप आगे बढ़ रहे हो, यहां से देखो ना, मैं यहां से चलते हुए जा रहा हूँ, दो पाथ है, एक मेरे लिए लेफ्ट पाथ है, दूसरा राइट पाथ है। पॉइंट क्लियर? अब अगर लेफ्ट और राइट दो करंट मुझे मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों सीरीज पाथ, ये दोनों सीरीज पाथ कैसे कनेक्टेड है? That's all. So these two series paths are connected in parallel. अब पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कैसे रहता है? R1 प्लस R4 प्लस R6, जब आप प्लस लिखते हो तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन बताता है। इट इज इन पैरेलल विथ R2 प्लस R5 प्लस R7। इट इज इन पैरेलल विथ दीज थ्री। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन आप लोग सॉल्व करोगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हो? दिस इनटू दिस डिवाइडेड बाय दिस प्लस दिस। फिर से एक बार, दिस प्लस दिस, दैट्स ऑल। वो करो कैलकुलेशन, बताइए जल्दी। सो दिस इज 100 प्लस 47 प्लस 220 इनटू 100 प्लस 47 प्लस 220 divided by summation of all 100 plus 47 plus 220 plus 100 plus 47 plus 220। यानी 100 टू 100 कितना हो जाएगा? 300, 320, 320 प्लस 47, 357, 367। तो 367 इंटू 367 अपॉन 367 प्लस 367 इंटू 367
कैलकुलेटर चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ऑप्शन आ जाते हैं सारे ऑप्शन है उसमें भी सेम। हाँ, अच्छा 183.5. Okay, so the value of that resistance is 183.5. ये हो गया आपका नॉर्टन्स रेजिस्टेंस। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मैं ये दोनों पेजेस आप लोगों को अभी व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगा, मैं यानी बैचमेट्स जो अभी आपके हैं ऑफलाइन मोड में, वो लोग आप लोगों को शेयर कर देंगे, ठीक है। ओके, अब आपके पास नॉर्टन्स करंट आ गया। नॉर्टन्स करंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, इट इज 27.25 मिली एम्पियर। उसके बाद नॉर्टन्स रेजिस्टेंस आ गया 183.5, ठीक है। लोड रेजिस्टेंस आपको नोन है, जो हम लोगों ने पहले लिखा था, इट्स वैल्यू इज 82 ओम्स। अब आपको फाइंड करना है नॉर्टन्स करंट, और नॉर्टन्स करंट अभी आप ये कैसे फाइंड करोगे? नॉर्टन्स करंट माने सॉरी लोड करंट, नॉट लोड करंट। अब ये लोड करंट आप कैसे फाइंड करोगे? लोड करंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर अगर करंट डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे करंट डिवीजन रूल, और करंट डिवीजन रूल के हिसाब से, करंट डिवीजन रूल के हिसाब से IL इज इक्वल टू IN मल्टीप्लाइड बाय RN अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस अपॉन अपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस प्लस R3। नॉर्टन्स करंट है आपका 27.25 मिली एम्पियर, उसको आप मिली एम्पियर रहने दें, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाइड बाय RN 183.5 डिवाइडेड बाय 183.5 प्लस R3 माने 82। कैलकुलेशन के लिए थोड़ा समय लग गया, अदरवाइज प्रैक्टिकल आपका 10 मिनट्स 20 मिनट्स का है। ओके, नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ IL। और 19.00 19.0 18.83 मिल रहा है, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। फाइन, सो आई विल जस्ट चेक 19 मिली एम्पियर। आपका लोड करंट कितना आ रहा था जो आपने मेजर किया? लोड करंट 20.2 मिली एम्पियर। आपका कैलकुलेशन से लोड करंट कितना आया? 19 मिली एम्पियर। ओके, अब देखते हैं नॉर्टन्स करंट आपने मेजर कितना किया? 28 मिली एम्पियर, और आपने नॉर्टन्स करंट कैलकुलेट कितना किया? 27.25 मिली एम्पियर। Okay, so near about we are getting the values for Norton's current as well as for load current, and hence hence Norton's theorem is valid. Okay, so online students, that's all with this practical. In fact, the recording is also going on, so related recording will be shared soon on Google Classroom, so that you can avail that. So right now you just send your attendance on chat box, in chat box, roll number 1 to 10, roll number 1 to 10. रोल नंबर 14। Okay, roll number 11 to 20. Roll number 11 to 20. Okay. Then roll number 21 to 30. Roll number 21 to 30. Then roll number 31 to 40.
footage ले लो. Roll number 41 to 50. Roll number 51 देता है. Then roll number 51 to 60. Roll number 51 to 60. पूरे book पे. Then roll number 61 to 65. Roll number 61 to 65.